So today we are discussing the workshop which has a topic, the physical and the mental health of seniors after COVID-19. Last time we discussed that the COVID-19, what impact it had upon the seniors, how we suffered, and when that era is over after 2.5 years, how we rehabilitated to the original lifestyle to which we had been earlier to COVID-19. You all know it very well that we had been meeting frequently in our clubs without any mask, without any fear, without any phobia. But when that pandemic came, it disturbed our life, and we had confined to the rooms, isolation, and sometimes if you travel anywhere, you had to observe 14 days quarantine to be away from others, not to mix up with the others, and to get tested whether you are COVID positive or negative. It was absolutely essential for the reason that we have seen it had horrible effects upon everyone, and the seniors, they were the most vulnerable section of the society, and most effect was on the seniors. We have seen in the senior homes what was the state of affair. We were frightened of our own. We have a self-control not to come out and to observe the restrictions which are imposed by the state. We had been traveling in the buses with masks, we had been using sanitizer, and even we applied for certain grants under the New Horizons Seniors Program to have some kit for the seniors, and we distributed, we had certain camps, we organized certain camps for the seniors, and liberally we distributed these items to the seniors so that they can protect themselves from this horrible disease. Anyway, that time is over. We are very happy. There is no requirement for wearing any mask. That is just for precautions. And now they say that we are to compromise with the COVID-19 for the reason as it is, we have the other diseases coming seasonal. So it has become a pandemic. From pandemic, it has become endemic, a local disease with which we are to live because we have been properly vaccinated. So we need not. We have the boosters also. आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, the effect of COVID-19 on the physical and mental, and how we can maintain our physical strength and mental strength. देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर इट विल बी ओपन टू ऑल टू हैव ए डिस्कशन ऑन दैट. और जो भी आप अपना कंट्रीब्यूशन, पिछली बार बहुत अच्छा लगा, मैंने वो वीडियो पील मल्टीकल्चरल काउंसिल वालों को भेजी, उन्होंने बहुत लाइक की, बहुत अच्छा. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, हालांकि हम लोग 28 थे लास्ट टाइम, लेकिन वो 150 से ज़्यादा लोगों ने उसका व्यू किया, तो बहुत अच्छा रहा. मैं चाहूँगा इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां कि हमारा जो वीडियो है
वो बहुत अच्छा लगा और बहुत लाइक किया और बहुत एप्रिसिएशन, और पील मल्टीकल्चरल काउंसिल वालों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यू केप्ट ऑल द सीनियर्स एंगेज इन दैट एक्टिविटी, और हर एक ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वी हैड इन हिंदी, सो हिंदी इज़ ए लोकल लैंग्वेज to which I think most of the people, Chinese and English people, they don't understand what is Hindi. But anyway, we enjoyed it very much because it was in our own language. We took the best advantage of the discussion because you had discussed in Hindi, in our regional language. एक होती है physical. Can you define what is physical? बड़ी मामूली सी बात है। फिजिकल और मेंटल में फर्क क्या है? यस, पहले फिजिकल बताइए। फिजिकल रिलेटिंग टू बॉडी, रिलेटिंग टू फिजिक। मेंटल माइंड। अब आप समझ गए कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नंबर वन बॉडी, द अदर वन इज माइंड। लॉ में डाइवोर्स की एक प्रोविजन होती है, क्रूअल्टी। पहले सिर्फ फिजिकल क्रूअल्टी हुआ करती थी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। फिजिकल क्रूअल्टी का क्या मतलब है? कोई किसी की डंडा लेके पिटाई करता है, बहुत बुरी तरह जख्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद सीवियर बीटिंग होती है, तो उसको क्रूअल्टी माना जाता था। और वो ये कहते थे फिर भी सोच लो, अगर इकट्ठा रह सकते हो तो रह लो। उसके बावजूद भी वो ये कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज़ ए गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, कि अगर वो लड़ते झगड़ते मारते पीटते एक दूसरे के बॉडीली इंजरी करते हैं तो इट इज़ ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। लेकिन मेंटल कभी उन्होंने इसको महसूस नहीं किया था। हम जनरली बहुत बाहर वाले कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, और इंडिया में तकरीबन वो कोर्ट की जाती है प्रेसिडेंट, और उसके बाद हम अगर उसको फॉलो करना हो तो कर लेते हैं। कुछ देर बाद ये सोचा गया कि सिर्फ जिस्म के जख्म जो है वही शदीद नहीं है, वही सीरियस नहीं है, मेंटल इंजरी उससे भी ज्यादा सीरियस है, और इसको भी हमें ग्राउंड फॉर डाइवोर्स मानना चाहिए। अब ये पोजीशन आ गई है व्हेन आइदर ऑफ द स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, uses filthy language, गाली गलोच करे, उसको नीचा दिखाए, लुक डाउन अपॉन करे, हर बात पर सुप्रीमेसी क्रिएट करे, तो भी वो मेंटल क्रूअल्टी है, एंड इट इज सफिशिएंट टू ग्रांट डाइवोर्स। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप खुद समझते हैं कि फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी दोनों डिफरेंट है। हम यहाँ पर आज वही चीज देखेंगे कि फिजिकल हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड-19 के बाद, जो हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ। हम आइसोलेशन में रहे, अकेले रहे, सोसाइटी में रहे ही नहीं हमारे, और उसके साथ साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ और हमें उससे कैसे उभरना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज पहले तो ये है कि क्या इफेक्ट हुए, उसके बाद उसको कैसे हमने दूर करना है, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहले कौन सा डिस्कस करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है लेट अस डिस्कस फिजिकल। कोविड-19 में हमारे ऊपर कौन से फिजिकल इफेक्ट हुए, बॉडी के ऊपर कौन से इफेक्ट हुए? यस, कौन बोलना चाहेगा? जी, अप्रैल में हुआ था लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आई।
आप आएंगे इधर 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 आ जाए तो आ जाइए। हाँ जी, माशाल्लाह आवाज़ तो आपकी वैसे भी बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी और ऊंची हो जाएगी। ये सारे बुजुर्ग हैं, इनका हार्ट ऑफ हियरिंग है, 2-2 दिन कानों में मशीनें लगी हुई हैं। मैंने ये फेस किया था कोविड, जब सेकेंड वेव हुई। फर्स्ट वेव में तो हम बच गए, सेकेंड वेव में थोड़ी लापरवाही भी हुई, और कुछ सेकेंड वेव स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही भयानक हुई थी। तो उसमें मैं भी चपेट में आ गई थी अप्रैल में, और पहले तो मुझे समझ ही ना आया 2-3 दिन बहुत ज़्यादा, फिर टेस्ट करवाया तो आगे आके भी कोविड है। तो वही आइसोलेशन 13-14 दिन, वो तो चलो आइसोलेशन में म्यूज़िक सुनते रहे जैसे भी करके, अलग रूम में खाना वाना खाते। बट आफ्टर दैट वो जो उसमें तो बहुत वीकनेस हुई, फिर रिकवर भी कर गई, लेकिन बॉडी इतनी पूरी तरह से फटीग, कुछ भी करा ही नहीं जाता था। कोशिश तो करते थे लेकिन बहुत ऐसे लगता था हाथ पैर में जान ही नहीं है। उसको काफ़ी विटामिन्स खाए गए खूब, जो डॉक्टर्स की एडवाइस थी, काफ़ी देर जिंक लो, वहाँ काढ़े भी खूब पिए, जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बोला। बट फिज़िकली बहुत देर लगा रिकवर करने में, कम से कम 4-6 महीने तो फिज़िकली। लेकिन अभी तक वो मेरे को, जो रात को गला सूख जाता है और कान में दर्द होने लगती, तो मैं अभी 2-3 महीने पहले ही इंडिया से आई हूँ, तो आने से पहले मैंने कहा मैं एक बार पूरा प्रॉपर टेस्ट करवा लूँ, कुछ और ही ना हो, जबकि 1 साल हो चुका था। फिर भी मैंने करवाया तो एंडोस्कोपी भी करी डॉक्टर ने, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। उसने सबसे पूछा पहले कि आपको कोविड हुआ था, मैंने कहा हाँ। कह रहा दिस इज़ आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट, आफ्टर ए ईयर ऑलमोस्ट। तो वो गला सूख जाता है रात को उठ के, अभी भी परेशान। तो ये फिजिकली तो हम बहुत चैलेंजिंग रहा सबको। मिसेस एक बार जोरदार ताली चाहिए। इन्होंने बहुत सी बातें कही कि बहुत देर लगी इनको, और सबसे बड़ी परेशानी ये थी आइसोलेशन की। आज आप एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उसको देखने से, मिलने से, बात करने से, इकट्ठे बैठ के खाने पीने से ही आप ये देखेंगे कि उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि जो पहले चीजें हमने सफर की हैं उसको हम काफी देर तक, इन्होंने कहा कि आज तक भी मुझे वो कंप्लीट फिजिकल स्ट्रेंथ वो हासिल नहीं हुई जो पहले थी। बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई कि मैंने जब वो फील किया उसके बाद मैंने मेडिकल प्रोफेशनल के पास गई अपनी हेल्थ के लिए, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी की, फिर एक दूसरे से बातचीत की, तो उसके बाद फिर वो हुआ। तो डेफिनेटली सबसे पहले यही होता है कि जब कोविड-19 में हम लोग एक आइसोलेशन में चले गए, सेपरेशन में चले गए, और दूसरा फोबिया हो गया कि ये जो इतनी ज़बरदस्त बीमारी है उस पर इफेक्ट हो गया, हमारा वो वाला रिश्तेदार चला गया, वो चला गया, और यहाँ सीनियर होम्स में कितनी ज़बरदस्त फैल गई थी। लेकिन मैं ये शाबाश देता हूँ उन नर्सिस की, उस मेडिकल स्टाफ की, कि जो उस सिचुएशन में भी अपने ऊपर पूरा कवर पहन के और वो लोगों की सेवा करते रहे। ये इट इज़ ए रिमार्केबल एंड गिव ए क्लैप टू ऑल दोज पर्सन्स हू सर्व द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर एंड वी आर हेल्दी। अब एक और हो गई कि फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए डोंट यू फील दैट एक्सरसाइज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। कोविड के टाइम में तो हम एक्सरसाइज भी भूल गए थे, दिमाग में वही होता था कि आज मुझे कोविड तो नहीं हो गया, आज मेरी तबीयत कुछ ऐसी ढीली सी लग रही है, तो वो। तो अब आप बताइए कि एक्सरसाइज के बारे में, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए what kind of exercise you will have or you had after COVID-19? Before and after. पहले तो खूब करते थे,
बाद में तो आप सैर करने भी नहीं जाते थे क्योंकि लगता था कि पता नहीं वहाँ से किसी का। मैं एक बार बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे नंगे हाथों नर्स ने टच कर लिया। आई शाउटेड अपॉन एनीथिंग। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि हो सकता है कि आपके यहाँ जर्म्स हो और मुझे लग जाए और मैं इसी में अफेक्टेड हो, तो मैं तो हाई रिस्क में आता हूँ, तो आपने ये क्यों टच किया। इतना हमें फोबिया हो गया था, इतना दहशत हो गई थी, इतना डर लग गया था कि हम किसी चीज को, आप दरवाजा नहीं खोलते थे, आप बस में नहीं चढ़ते थे, कोई पता नहीं कहां से किसको हो जाए, घर वाले जाने ही नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। यहाँ तो शुरू में उन्होंने पुलिस लगा दी थी कि घर से कोई बाहर निकला तो उसका चालान कर लो, अरेस्ट कर लो उसको, विदाउट रीजन, विदाउट एनी स्पेशल नीड, वो बाहर नहीं आना चाहिए। जी बताना चाहेंगे आप मिस कोली जी? फिजिकल एक्सरसाइज इधर आके कर दे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आवाज। कोविड-19 ने तो इतना डरा के रख दिया था कि जैसा आपने बताया कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ हाथ नहीं लगाना, ये नहीं होना। ऐसे होता था जैसे किसी को छूत की बीमारी हो गई है कि बाहर तुम्हारा खाना रख दिया है, उठा लेना। और मेंटली उस आदमी को जिसको कोविड हो जाता था वो समझता था कि पता नहीं मेरे तो बिल्कुल जाने के दिन आ गया, तो इतना मेरे से परहेज कर रहे हैं। वो अपने आप में बहुत परेशान होता था। तो आपने ये पूछा है कि क्या उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्या उस वक़्त बहुत सारी संस्थाएं आगे आई, बहुत सारे लोग आगे आए ये बताने के लिए कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो अपनी फिज़िकल हेल्थ को। तो उसमें यही था कि मेडिटेशन सबसे पहले कि आप बैठ जाओ, अपने आराम, लंबे लंबे सांस लो और जिससे आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो, उनमें जितनी भी है ऑक्सीजन है वो जितनी भर सकते हो उतनी भरो, ताकि ऑक्सीजन से आपके लंग्स जो हैं उन पे इफ़ेक्ट ना हो, आपकी किडनी जो है वो ठीक रहे। और उसके बाद अंदर ही बैठे हुए जैसे आपने जितनी भी हमारे आसन हैं, एक्सरसाइजेज हैं, जो भी हमारे स्वामी रामदेव जी ने बताए हैं या हमारे लोगों ने, तो वो हमें करने के लिए कहा गया और काफ़ी इफ़ेक्ट भी उनका हमारे शरीर पर पड़ा कि भी उससे भी वो जो खोई हुई ताकत है, हमारे मन को वैसे भी काफ़ी विश्वास हो गया कि ऐसा करने से हम अपनी खोई हुई जो वो हम वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बताई गई। और उसके बाद खास उन्होंने ये कहा कि अपनी खुराक की तरफ जो है, खाने पीने की अपनी डाइट जो है उसका पूरा तरह से ध्यान रखा जाए। कोई भी जंक फूड है या कोई भी फालतू चीज़ है वो ऐसी ना ली जाए। तो ऐसा अपनी शारीरिक शक्ति को वापस जी नहीं, बहुत हल्की तालियां रही मुझे लगा। इन्होंने एक पॉइंट और कहा उसके साथ, गुड डाइट। पहले ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज हम सीनियर हैं, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चे अपने टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, हमें उनको देख के वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करिएगा। अगर मेरी एल्बो में दर्द है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं उतने जोर से करना है, बड़े इत्मीनान से। दैट मीन्स यू शुड डू द फिजिकल एक्सरसाइजेस एज पर द नीड ऑफ योर बॉडी। जितना आप फील करते हैं कन्वीनियंट हो, सिर्फ उतनी एक्सरसाइज करिएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि डाइट जो है वो भी आपकी फिजिक को, अच्छी डाइट जो है, टाइम पर डाइट जो है, हम टाइम के वक्त के गुलाम नहीं है। कभी अब खा लिया, कभी 2 घंटे बाद खा लिया, कभी पहले खा लिया, कभी बाद खा लिया, लेकिन उसका एक टाइम होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। और जो एनर्जी देने वाली डाइट हो वो रखिएगा। आप तली हुई चीज़ें और वो चीज़ें वो मत खाइएगा। और उसके साथ गुड डाइट। और आप डॉक्टर साहब बताएंगे फिजिकल।
हेलो, देखिए कोविड से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती थी, एंड दैट इम्यूनिटी टू इंक्रीज द बॉडी इम्यूनिटी, वो आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको घर पे ही फिजिकल एक्सरसाइज आप जो भी कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमिल है या आपके पास बाइसिकल है, जो भी है, यू कैन डू दैट। और आप, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑल्सो, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, यू हैव टू ईट द न्यूट्रिशियस फूड, especially the proteinous food, which will increase your immunity. And that was the most important part of these two, कि आप एक्सरसाइज करें, घर पे भी बैठे भी हैं, आप कैसे भी आप चाहें वो घर पे भी अपनी, जैसे कि आप यहाँ आते हैं तो लोग आपको मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कराते हैं, so you could have done that also at home. And the food, you have to eat more proteinous food. And especially जो non-veg हैं, they could use the non-veg because that has, you see, 100% protein. But as you know, the proteinous food is also, especially dal and so, who are just vegetarians, they can use especially that. So basic of that to increase your immunity of the body. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने वो बातें बताई कि जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि देखिए आप अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, प्रोटीन होनी चाहिए और ये एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, नपी तुली डाइट होनी चाहिए। बहुत अच्छी एडवाइस दी ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, और ये देखिएगा कि कोविड ने लंग्स के ऊपर इफेक्ट किया। मिसेस कोहली ने कहा कि हमें जो सांस अंदर लेके उसकी इम्यूनिटी जो है, जो हमारे लंग्स की इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बाबा रामदेव ये कहते हैं कि आप सुबह उठ के अपना एक इधर से लीजिए, इधर से निकालिए और इधर से सांस लीजिए और उधर से निकालिएगा, ताकि ये ऑक्सीजन जो है इसका कुछ नहीं लगता, बट इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपके ब्रेन के हर सेल में ऑक्सीजन चली जाती है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो रीएक्टिवेट भी हो जाता है। अगर वो डम हो गया हो, अगर वो नम हो गया हो, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, बिल्कुल कंप्लीटली हो जाए, तो रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके साथ आफ्टर डिस्कसिंग फिजिकल, लेट अस कम टू साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या? सबसे पहले तो हम जो सीनियर्स हैं वो प्रोन होते हैं एंजाइटी। सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइटी का आपने कभी देखा होगा, मेरे फादर मेरे से काफी बड़े थे, वो घर पे बैठने नहीं देते थे। अगर आपने ट्रेन पकड़नी हो तो जबरदस्ती आपको आधा घंटे, चाहे वो 10 मिनट का रास्ता होता था, लेकिन आधा घंटा पहले घर से कहते थे कि अब तू चला जा, ट्रेन ने तेरा वेट नहीं करना, तूने ट्रेन का वेट करना है। और हमारी आदत होती थी कि अगर देख लिया वहां ट्रेन आ गई तो भाग के भी जाके पकड़ लेते थे। कहते डोंट डू लाइक दैट। बुजुर्गों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और वो उनको बहुत परेशान करती है। जो साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में एक डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो एंजाइटी की शेप ले लेती है, और एंजाइटी जो है वो आपकी हार्ट डिजीज का उसी से शुरू होता है। डिप्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब एंजाइटी से। तो पहली चीज ये है कि हमें जो एंजाइटी होती है उसको कंट्रोल करना है, उसी से हमने डिप्रेशन को कंट्रोल करना है।
उसी से हमने मेमोरी लॉस को कंट्रोल करना है। लेकिन ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है कि हमें वो ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसके साथ हमारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो, तो हमें वो एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को ओवरपावर कर सकें। अल्जाइमर, डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ये सब वरीज से आता है, एंजाइटी एंड वरीज से। हमें एंजाइटी को दूर खत्म करना चाहिए और हमें अपनी वरीज को कम करना चाहिए। एक ये है कि सोसाइटी में, क्लब्स में जाना, एक दूसरे से बात करना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखते होंगे कि घर बैठे बैठे आप अपने बारे में सोचेंगे, बाहर जाएंगे तो अपनी सोच को छोड़ के आप दूसरों के साथ मोहब्बत से बात करेंगे, सोसाइटी में बात करेंगे, तो उससे, तो कहने का ये है कि साइकोलॉजिकली जब भी आप डिस्टर्ब फील करें तो एक तो उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलिएगा। घर में बैठे बैठे कोई आपको चीज परेशान कर रही है, कोई आइडिया आपको परेशान कर रहा है, तो इमीडिएटली उसको आपने ब्रेक करना है और उसका सिचुएशन चेंज करनी है, एनवायरनमेंट उसका चेंज करना है, दूसरे माहौल में जाना है और उस थिंकिंग को कट करके, क्योंकि अगर आप उसी को सोचते रहे तो सोचने, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सोचिया सोचना उतरे, जो सोचे लख पार। अगर 100,000 टाइम भी सोचते रहोगे तो उसका कोई सल्यूशन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो आपके दिमाग के ऊपर इफेक्ट कर जाएगी चीज। आपको उसको तोड़ के बाहर निकलना है, सैर करने चले जाओ, लोगों से बात करो, वो सिचुएशन वो जो है उसको आप खत्म करें। इसके साथ आप अगला और कोई पॉइंट, आप तो काढ़ा भी बहुत पिया करते थे, आपके मैसेज आया करते थे कि हमको यहाँ सुबह उठ के काढ़ा बना के पीते हैं। जब मेड्स का आना बंद हो गया, जी, मेड्स का आना बंद हो गया, सबसे बड़ी मेड का आना बंद हो गया। ये बड़ी जबरदस्त, बाय गॉड, सोसाइटी में बहुत झगड़े हुए कि वो जो सोसाइटीज वाली थी वो अपनी गाड़ी में बिठा के लाया करते थे, सिक्योरिटी वाला रोक लेता था, मैडम पहले इसको उतार दो, कहती ना ना मैं उतर जाऊंगी, इसको घर जाके काम करने दो। तो वो मेड वाली जो कल्चर है हमारे वहाँ, जो कल्चर बहुत ज़रूरी है और वो हमेशा रूल करती हैं, क्योंकि कई जगह काम करती हैं और उन दिनों में उनका आना बंद हो गया। बट हम लोग तो यहाँ खुदी मेड है जी, हम लोग तो यहाँ खुदी मेड है। हम इंडिया में और यार मेड का आना बंद हो गया। आदमी लोग वहाँ इंडिया में काम नहीं करते हैं। हाँ? आदमी लोग वहाँ काम नहीं करते, हाँ, आदमी लोग क्योंकि काम काम बंद हो गए, मतलब जो ऑफिसेज बंद थे, सारे या काम ही घर में थे, adjusting तो आदमी लोगों को काम करना आ गया। जी, मंगला बहन बोलेंगी। मंगला बहन, शिवा, नहीं नहीं, आप काइंडली कम हियर। नो नो, शी विल हेल्प यू। Come on, come on. We want to record your voice also. मंगला बहन, आज जोरदार ताली बजाइए, पहली बार कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है मंगला बहन जी। I have just one question and one thing to say, that we have to take a holistic approach, that mind and body together. दोनों साथ में, you know, because mind cannot function without body, body cannot function without mind. So if we have to set things right, we have to set both of them right. Because if we are physically weak, automatically our mental processes slow down. And if we initiate mental processes to be quick or whatever, or like even like you said, exercise. If you exercise, the oxygen starts flowing properly and your mind starts working properly. So I think both together, we have to take the body as a whole, mind plus body. That's all. मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन
विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, हो अपनी करुणा